हेलो एवरीवन। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ऑस्पी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग स्किल। ये FON का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम FON के 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। नर्सिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड एप्लीकेशन? आंसर, कोल्ड एप्लीकेशन इज द कोल्ड एजेंट cooler than skin either in a moist or dry form on the surface of the body. Question number 2, what are the indication और यूजेस फॉर कोल्ड एप्लीकेशन? क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब है बर्फ़ की टिकोर करना, यानी बर्फ़ वगैरह लगाना, और ये किन किन वजह से हम यूज़ करते हैं और किन हालात में यूज़ करते हैं। नंबर 1, टू रिलीव पेन एंड बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2, टू एनेस्थेटाइज एन एरिया। नंबर 3, टू हेल्प ब्लीडिंग और हेमरेज। नंबर 4, टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 5, टू प्रिवेंट एडिमा। नंबर 6, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इक्विपमेंट फॉर कोल्ड एप्लीकेशन? यानी कोल्ड एप्लीकेशन के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आंसर, आइस पैक्स, आइस बाथ, कूलिंग जेल पैक्स, कोल्ड एयर स्प्रेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय हॉट एप्लीकेशन? आंसर, द हॉट एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट वार्मर देन द स्किन। Heat is applied in either a moist or dry form on the skin. It is also known as vasodilation. It uses for number 1, to the flow of blood and nutrients to an area of the body. Number 2, to reduce the pain. Number 3, to provide comfort. Number 4, to decrease joint stiffness. Number 5, to increase muscles relaxation. Question number 5, what are the examples of hot application or the equipments for hot application? यानी अगर हॉट एप्लीकेशन की एग्जाम्पल की बात की जाए या हॉट एप्लीकेशन की इक्विपमेंट के लिए पूछा जाए। नंबर 1, हॉट वाटर बॉटल। नंबर 2, हीट रैपर्स। नंबर 3, हीटेड जेल पैक्स। नंबर 4, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स। नंबर 5, हीटेड पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट। नंबर 6, हॉट टब। नंबर 7, हॉट बैथ और शावर। नंबर 8, स्टीम बैथ एंड नंबर 9, सोना बैथ। Moist heat therapy can encourage overall feelings of relaxation and well-being that may lessen pain. Question number 6, what are the complications of a heat water bath? Answer, number 1, skin burns. Number 2, dermal tissue damage. Number 3, cuts and wounds. If severely burns, when used excessively or in the wrong manner. Question number 7, how long should warm and cold application be applied? Answer, for only 15 to 20 minutes. Whether use heat or cold, be sure to wrap the pack in a thin towel to help protect the skin. Apply to the painful area for 15 to 20 minutes several times each day according to the pain or body situation. अगर हीट या कोल्ड पैक बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म है तो आप थिन टॉवल की जगह पे मोटा टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। Question number 8, what is the machine used for suctioning? Answer, a suctioning machine also known as aspirator. बस इसका इतना ही आंसर है। अगर और भी ज़्यादा आप इसके लिए लिखना चाहें तो it is a type of medical device that is primarily used for. ये किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? Number 1, to remove obstructions like mucus from the airway. Number 2, to take out saliva. Number 3, to eliminate blood. Number 4, to take out secretions. क्योंकि पेशेंट को अगर ट्रेकोस्टमी लगी हुई है या पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, वो ये इस काबिल नहीं है कि वो अपनी इन तमाम चीज़ों को निकाल सके, सलाइवा वगैरह को, तो फिर हमें वो सक्शनिंग करके निकालनी पड़ती है ये तमाम चीज़ें, ताकि एयरवे या सांस की नाली बंद ना हो जाए और हम इसे प्रोटेक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, what are the 4 types of suctioning? Answer, number 1, nasal suctioning, means suctioning in the nose. Number 2, oral suctioning, suctioning the mouth. Number 3, nasopharyngeal suctioning. Number 4, oropharyngeal suctioning, means suctioning the throat or deep suctioning. Question number 10, what do you mean by suctioning? Answer, suctioning is the mechanical aspiration of pulmonary secretion. Question number 11, which suction is done first? Answer, the mouth first. If both the mouth and nose need to be suctioned, suction the mouth first. Question number 12, what is sitz bath? Answer, a bath in which only the buttocks and hips are immersed in water. यानी सिट्स बाथ वो बाथ है जिसमें हिप्स एंड बटक्स पानी में डूबे रहते हैं ट्रीटमेंट के पर्पज़ से।
only for 15 to 20 minutes every time. Question number 13. Which salt is best for sitz bath? सिट्स bath के लिए अक्सर लोग सॉल्ट के चॉइस को मद्देनज़र नहीं रखते और ज़्यादातर टेबल सॉल्ट जो घर में खाने वाले सॉल्ट होते हैं वही यूज़ करते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है. नंबर 2, 1 to 2 टीस्पून मीन्स हाफ कप का भी हाफ कप. 75 मिलीलीटर्स सी सॉल्ट. नंबर 3, 1 to 2 टीस्पून टेबल सॉल्ट. नंबर 4, 1 to 2 tablespoon baking soda or also called sodium bicarbonate. And number 5, do not use iodized salt. यानी टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट एंड एप्सम सॉल्ट अपने कंपोजिशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. टेबल सॉल्ट में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है जो कि इंसान को यानी पेशेंट को बर्निंग फीलिंग कॉज करता है, जबकि सी सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड के अलावा बहुत ही कम मिकदार में ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं. और एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम एंड सल्फ़र सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये स्किन को जल्दी हीलिंग में हेल्प करते हैं और स्किन को इरिटेट भी नहीं करते. इसीलिए एप्सम सॉल्ट सिट्स बाथ के लिए रिकमेंडेड है. और आयोडाइज सॉल्ट में मौजूद आयोडीन स्किन में इरिटेशन यानी बेचैनी पैदा करता है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट सिट्स बाथ के लिए मुनासिब नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट्स इन अ सिट्स बाथ किट? यानी सिट्स बाथ की किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन सा सामान होता है. आंसर. द किट इंक्लूड्स नंबर 1, अ शैलो बेसन filled 2/3 with warm water. The perineum should be soaked in water. Number 2, warm water, temperature 37 centigrade to 39 centigrade or 99 Fahrenheit to 102 Fahrenheit. Number 3, half cup Epsom salt or 1 to 2 teaspoon sea salt or table salt. Question number 15. What will be the position, time duration and frequency for sitz bath? Answer. Number 1, position. Position should be sitting position. Legs should be out of water. Number 2, time duration 15 to 20 minutes only. Number 3, frequency 2 to 3 times or in acute situation 4 times. Question number 16. When sitz bath are used? Answer. Sitz bath can be useful for number 1, hemorrhoids. Number 2, infection in the urogenital area. Number 3, healing in women after vaginal birth. Number 4, cleaning the area around the anus and the genitals. यानी ये वो तमाम सिचुएशन है जिसमें सिट्स बाथ पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम इनहेलेशन? आंसर. इट इज़ सिंपली ब्रीदिंग इन स्टीम फ्रॉम हीटेड वाटर. यानी पानी इतना ज़्यादा गर्म हो कि इसमें से स्टीम या भाप निकलती रहे, जिसमें पेशेंट को सांस लेते रहना है, स्टीम इनहेलेशन लेते रहना है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट आर द कंडीशन दैट नीड स्टीम इनहेलेशन? आंसर. नंबर 1, कॉमन कोल्ड. नंबर 2, द फ्लू, इन्फ्लुएंजा. नंबर 3, साइनसाइटिस, इन्फेक्शियस साइनसाइटिस. नंबर 4, ब्रोंकाइटिस. नंबर 5, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. नंबर 6, अपर एयरवे एलर्जी. Question number 19. What equipment is needed for steam inhalation? Answer. Number 1, jug or kettle filled with boiling water only 2/3. यानी जग या कैटल जिसमें भी बॉइलिंग वाटर डाला है उसमें से 4 हिस्सों में से 3 हिस्से भरे होने चाहिए और 1 हिस्सा ज़रूर खाली होना चाहिए. नंबर 2, बॉइलिंग वाटर. नंबर 3, लार्ज टॉवल्स और शीट. नंबर 4, स्टीमर. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट आर द थिंग्स नेसेसरी फॉर स्टीम इनहेलेशन? यानी स्टीम इनहेलेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम हॉट वाटर. मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द माउथ पीस. यानी गर्म बर्तन या जहाँ से स्टीम निकल रही हो उससे 7 to 8 सेंटीमीटर दूर रखेंगे ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से माउथ वगैरह में बर्न ना हो. नंबर 2, वाटर टेम्परेचर. If possible, maintain temperature 120 Fahrenheit to 160 Fahrenheit or 54.4 Celsius to 76.7 Celsius. यानी स्टीमर के साथ जो है पानी को उबलता हुआ रखेंगे ताकि उसमें से स्टीम कंटिन्यू निकलती रहे. नंबर 3, डोर एंड विंडोज शुड बी क्लोज. नंबर 4, टाइम ड्यूरेशन. इट शुड बी 10 to 15 minutes once or twice a day. नंबर 5, डीप ब्रीदिंग. यानी ड्यूरिंग स्टीम इनहेलेशन पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के लिए कहेंगे, यानी गहरे गहरे सांस वो लेता रहे, नाक से भी और मुंह खोल के भी.
Question number 21. What are suppositories mainly used for? Or what are the indications for suppositories? Answer. Number 1, helping soften the hard stool. Number 2, relieving constipation. Number 3, improving emptying of the back passage. Question number 22. What should be the position for insertion of suppositories? Answer. Number 1, left lateral position. Number 2, knee chest position. यानी सपोजिटरीज देते वक्त पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाते हैं और ये एडल्ट पेशेंट के लिए होती है, जबकि छोटे बच्चों के लिए नी चेस्ट पोजीशन होती है जिसमें उन्हें सपोजिटरीज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमा आर देयर? आंसर. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनिमा. नंबर 1, क्लिनजिंग एनिमा. नंबर 2, रिटेंशन एनिमा. अदर्स आर सेलाइन वाटर एनिमा, मीन्स नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन. नंबर 4, मेडिकेटेड एनिमा. नंबर 5, ऑयल रिटेंशन एनिमा. अदर्स एनिमा जो होते हैं वो सब टाइप एनिमा होते हैं जो क्लिनजिंग एंड रिटेंशन एनिमा के ही सब टाइप होते हैं और इन्हीं के तरह के सोल्यूशन से बनते हैं. क्लिनजिंग एनिमा जो होते हैं वो वाटर बेस होते हैं, जबकि रिटेंशन एनिमा जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमिन. नंबर 1, सिंगल रैंडम स्पेसिमिन, यानी यूरिन का ये सैंपल यूरिन डीआर के लिए और यूरिन सीएस यानी कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए किसी भी वक्त लिया जा सकता है. नंबर 2, टाइम्ड शॉर्ट टर्म स्पेसिमिन, यानी ये 2 आवर्स का शॉर्ट पीरियड का सैंपल होता है जो हमें 2 आवर्स के अंदर अंदर लेबॉरेटरी में भिजवाना होता है. टाइम्ड लॉन्ग टर्म स्पेसिमिन, this is 24-hour urine specimen is an extremely important diagnostic test because it reveals how the kidney adjusts to change physiological needs over a long period of time. यानी 24-hour यूरिन कलेक्शन जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किडनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए. यानी लॉन्ग टर्म स्पेसिमिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 24 आवर यूरिन कलेक्शन की जाती है और इसमें किडनी के फंक्शन को देखा जाता है कि किडनी कितना जो है वो क्रिएटिनिन रिलीज़ कर रही है और उसका फंक्शन कहता है. इसमें इसके प्रोटीन, हार्मोन्स, मिनरल्स और तमाम केमिकल्स कंपाउंड्स को देखा जाता है कि किडनी कितना रिलीज़ कर पा रही है या नहीं है, ये क्लियर हो रहा है या नहीं है, ये किडनी का फंक्शन कैसा है. नंबर 4, कैथेटराइज स्पेसिमिन और स्पेसिमिन फ्रॉम एन इंड्यूलिंग कैथेटर. ये दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस इसमें ये होता है कि 70% अल्कोहल से या किसी भी एंटीबैक्टीरियल से कैथेटर के पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट होता है, उसको क्लीन करके सिरिंज के ज़रिए से स्पेसिमिन निकाली जाती है. नंबर 5, स्टेराइल यूरिन बैग. स्टेराइल यूरिन बैग स्पेसिमिन छोटे बच्चों के लिए होता है क्योंकि ये बैग इनको लगा दी जाती है, इसमें कोई भी कैथेटर वगैरह नहीं होता है और बैग लगा के बच्चों का जो है यूरिन इसके अंदर पास करवाया जाता है और इसको लेबॉरेटरी में भेज दिया जाता है. इसमें कॉमनली तौर पर 50% कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इक्विपमेंट इज़ नीडेड फॉर यूरिन स्पेसिमिन कलेक्शन? अगर पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है और डायरेक्टली यूरिथ्रा से ये स्पेसिमिन लेना है यूरिन का, तो हमें क्लैम्प करने के बाद डायरेक्टली निडल लेस सिरिंज लेकर हम स्पेसिमिन जो है वो निकाल सकते हैं. दूसरा मेथड ये है कि पेशेंट को अगर कैथेटर लगा हुआ है तो हम कैथेटर के फर्स्ट पार्ट को 70% अल्कोहल या किसी भी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करके निडल वाली सिरिंज से हम स्पेसिमिन ले सकते हैं. अगर पेशेंट अप एंड अबाउट है यानी चलता फिरता है तो हम सिर्फ उसको कंटेनर दे देंगे, उसके ऊपर उसका MR नंबर वगैरह लिख के, नाम वगैरह नहीं लिखते क्योंकि इससे डिसरिस्पेक्ट होती है. हॉस्पिटल नंबर या केस नंबर या इस तरह की चीज़ हम लिख के पेशेंट को कंटेनर के ऊपर दे देते हैं यूरिन कलेक्शन के लिए. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो तो आपको सारा सामान लिखना है. नंबर 1, ग्लव्स. नंबर 2, अ क्लैम्प और अ रबर बैंड. नंबर 3, अ डिसइंफेक्टेंट स्वाब. नंबर 4, syringe with needle or a needleless syringe. Number 5, a specimen container. Number 6, biohazards transport bag. Question number 26. What is nebulizer? Answer. A nebulizer is a small machine that turns liquid medicine into a mist, यानी स्टीम, वेपर या भाप जैसा बना देते हैं. That can be easily inhaled through deep breathing. Question number 27. Name the parts of nebulizer. Answer. Number 1, compressor. Number 2, nebulizer chamber. Number 3, mouthpiece or face mask. Question number 28. What are the 3 types of nebulizers? Answer. Nebulizers are divided into 3 categories. Number 1, jet nebulizers. Number 2, ultrasonic nebulizers. Number 3, mesh nebulizers.
जेट नेबुलाइज़र को एटोमाइजर्स नेबुलाइज़र भी कहा जाता है। जेट नेबुलाइज़र स्मॉल वॉल्यूम नेबुलाइज़र है। इसमें एक माउथपीस लगा होता है। इस माउथपीस के ज़रिए पेशेंट मेडिसिन को सक करते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी ये वेंचुरी मास्क की तरह होता है कि जितनी इनको ज़रूरत होती है कम से कम उस तरह से होता है। जबकि अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, जो मेडिसिन को सांस के ज़रिए बहुत आसानी से अंदर ले जाती है। इसमें भी माउथपीस लगा होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी लो और हाई दोनों हो सकती है। जबकि मैश नेबुलाइज़र में मास्क की तरह लगा होता है, जो पेशेंट नाक से और मुंह से दोनों तरह से सांस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट शुड बी द पेशेंट पोजीशन फॉर माउथ केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट? आंसर, द sideline position, because this position prevent or reduce the risk of aspiration. An unconscious patient is placed in the sideline position when mouth care is provided. Question number 30, what equipment is needed for mouth care of unconscious patients? Number 1, an emesis basin or kidney tray or kidney basin. Number 2, a towel or Macintosh. मैकिनटोश में क्योंकि नीचे प्लास्टिक लगी होती है तो बेड ख़राब नहीं होते, तो पेशेंट के नीचे लगा देते हैं तकिए के पास, ताकि नीचे की तकिया और बेड जो है वो ख़राब ना हो। नंबर 3, डिस्पोजेबल कप, बाउल और गैली पॉट, इसमें से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। नंबर 4, माउथ वॉश। नंबर 5, टंग डिप्रेसर। नंबर 6, गॉस पेसेस और कॉटन स्वाब्स। नंबर 7, पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स। इस तरह की वीडियो के लिए मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।